Hello students, welcome to the video lecture series for the subject economics. Students, today I'll be talking about the concept of poverty. Now poverty, as we know, is a social phenomena. Obviously it's something which is related to to society. Being a social phenomena, it means that it's a condition in which a certain section of the society is unable to fulfill the bare necessities of life. अगर हम एक लेमैन भाषा में बात बोले तो पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन जब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल ना कर पाएँ. तो ना टाइम टू टाइम पॉवर्टी की डेफिनेशंस जो है, आपको जो पॉवर्टी क्या होता है, दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ डिफरेंट वे. बट हाँ, आफ्टर द 200 ईयर्स का जो रूल था हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का, उन्होंने दे हैव वाइडेंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. नाउ ये पॉइंट याद करने वाली बात है कि दादा भाई नौरोजी वॉज अ पर्सन हु फर्स्ट टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी लाइन, हु टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी एंड what are the levels of poverty. So now over the time, the Planning Commission of India, they have come up with a definition of poverty line which recommends the basic calorie consumption as a basic criteria, which says that if a person is living in an urban area, 2400 calories per person, and in rural areas 2100 calories per person. इट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि आपकी ज़रूरत पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है. नाउ एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है, ये एस्टिमेशन हमने किया है ऑन द बेसिस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन लेवल, द कॉम्पोजिशन ऑफ एज, सेक्स, ऑक्यूपेशंस, इन सारे पैरामीटर्स को एक साथ स्टडी करते हुए विद द करस्पॉन्डिंग कैलोरी नॉर्म्स बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. नाउ इन रुपीज़ अगर टर्म में बात करें तो ओवर द टाइम इसमें भी चेंजेस लेकर आए गए. द पॉवर्टी लाइन इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्लास इन विच द कैलोरी नीड्स आर टू बी calorie needs are to be satisfied. So these were the definitions. Now gradually अगर हम बात करें तो poverty तब की उस समय से हमारे लिए एक प्रॉब्लम है जब से mankind actually life exist कर रही है. So it's the biggest challenge for the economy, for the policy frameworks कि आप time to time ऐसे development plans लेकर आएँ जिससे poverty related issues को आप ख़त्म कर सके. Now एक कंट्री की ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करती है कि उनकी सोसाइटी कितनी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. यानी एक शॉर्ट उसमें बोला जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मीनिंगलेस लाइक इफ़ desirable segment of the economy of the society remains poor. So high poverty line means कि अगर हमने बोला कि that like level is high level, high poverty level exists in the economy, this means there is the people of the standard of living of the people is really very low. People are facing the problem of malnutrition. They are not able to have good calorie consumption. Now they are illiterate. There are they are illiterate, and there is again low human resource development in the country. So जो slogan जो है poverty eradication का है, time to time it has been adopted by the various political parties. मतलब ये अगर आप देखें तो time to time जितने भी political members होते हैं, ये हमेशा they take poverty as a major ground in order to get votes and they have been elected. So despite the various schemes, even हर government के time पे various schemes लेकर आई, we'll be discussing those schemes in the coming part of this topic. So time to time various schemes have been brought, but still हमने अभी तक poverty eradicated country हम आज तक नहीं है, and this continues to be one of the major social problem which continues to haunt the Indian economy. So अगर हम बात करते हैं तुम्हारे poverty से related, तो क्या टर्म्स होते हैं, क्या टाइप्स हैं, अगर हम अभी बात करेंगे देयर आर 2 लेवल्स पॉवर्टी के, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, जो हम अभी आगे बात करेंगे. बट बिफोर दैट वी वुड टॉक अबाउट द कॉजेज कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन इकोनॉमी. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो तुम्हारी किसी और सोशल इशू में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन. So over the time we have touched a figure like we have become one of the biggest economies, having a second largest number of population. So this is one of the major parameter which has contributed towards the problem of poverty.
Second is landless labor. Since India being an agrarian economy, major dependency is on agriculture, और वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो सीजनल है और या वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. तो जो ये लेबर का जो नंबर है ना वो लैंडलेस है. They continue to they keep on looking for a good opportunities, good jobs in options के लिए वो time to time like options देखते रहते हैं. अब ये इस वजह से क्योंकि उनके पास खुद के लैंड्स नहीं है. खुद के लैंड्स ना होने की वजह से कहीं ना कहीं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जिसकी वजह से शायद एक रिक्वायर्ड इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट poverty problem continues to exist. Now next is low productivity. The second factor, the second cause of poverty is low productivity. Low productivity का मतलब सीधा सा यही है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है poverty का, ये इसलिए है क्योंकि अगर हमारा जो प्रोड्यूस है, जो टोटल प्रोडक्शन हमारी कंट्री का है, जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अगैन आपकी जो प्रोडक्टिविटी के एंड से बात करें तो वो अगैन दे आर नॉट एबल टू टच द बेंचमार्क्स विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अ highly populated country like India. So this is one of the issues which is yet to be taken care of. Now next is low food production. In again जो food poverty सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आपको very first line में I have told you that poverty is a problem where I'm not able to I'm not able to have I'm not able to fulfill even the basic necessities. The base, even its base necessities. तो basic necessities हमारी कौन सी होती? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फूड प्रोडक्शन जो हमारी कंट्री में हो रहा है वो उतना नहीं है जो हमारी पॉपुलेशन के लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज इलिटरेसी. पीपल आर इलिटरेट, दे आर नॉट स्किल्ड. और इलिटरेसी का पॉइंट ये भी है कि अगैन इलिटरेसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ग्राउंड्स जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एंड अल्टीमेटली वी आर ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. Now next is the political system and corruption. If you look into the data, you will find that despite the various schemes and lucrative plans which keep on prevailing under different political structure, still the problem of corruption exists, and the political setup is such that there is no proper check whether things have been implemented as per the plans or not. तो अभी जो हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में जो लाइव लेक्चर्स में हम विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग, हम इस जहाँ पे you'll come to know कि although there have been various political structure जो जिनका मेन एजेंडा ही है लोगों के लिए काम करना, और बहुत सारे बड़े नेता हैं जो इसी ग्राउंड पे बात करते हैं कि भाई हमारा अल्टीमेट एम है कि हम आपको पॉवर्टी इरेडिकेटेड कंट्री बनाएंगे. बट स्टिल बिकॉज ऑफ करप्शन एंड बिकॉज ऑफ द फेलियर इन दिस सिस्टम वी आर स्टिल फाइटिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट द इंडियन इकोनॉमी. Now next is the next problem which exists in a Indian economy is the lack of good job opportunities. Now in our previous class we have already talked about unemployment. Unemployment का सबसे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो पॉवर्टी कंट्रीब्यूशन के लिए है. इसीलिए वी आर ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल. कहा जाता है इंडिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर. हम गरीब इसीलिए हैं क्योंकि हम एक गरीब नेशन में हैं. तो गरीब होने का सेंस ही है कि गरीब है. क्यों गरीब है? क्योंकि जॉब्स नहीं है. जॉब्स नहीं है क्योंकि जॉब्स नहीं है इसलिए पैसा नहीं है. पैसा नहीं है तो हम अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अटेन नहीं कर पा रहे. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अटेन नहीं कर पा रहे इसका मतलब हम अपनी नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर रहे हैं. नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर रहे इसका मतलब हम पुअर हैं. तो वी स्टार्टेड विथ पुअर एंड अगैन इट्स अ सर्कल एंड अगैन वी आर पुअर बिकॉज वी आर पुअर. सो दिस इज द अभी व्हेन विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. इंडिया के लिए एक लाइन कही गई थी कि जिसमें मैंने आपको बताया इंडिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर. तो और पुअर का सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज पीपल आर जॉबलेस. दे आर नॉट गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज. वेरियस different types of unemployment do exist in our country, which has become one of the major factor which has contributed towards the problem of poverty. Now next जो problem है, reason है poverty का, that is inequality. Poor are becoming poorer and rich are becoming richer. ये जो inequality है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने पॉवर्टी को हमारी प्रॉब्लम कंट्री में डीप रूटेड कर रखा है. मीन्स पॉइंट सीधा सा ये है कि लाइक पीपल हु हैव इनकम दे कैन अफोर्ड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे कैन अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन मीन्स दे आर एबल टू लुक फॉर अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो पैसा है इसलिए पढ़ पा रहे हैं इसीलिए नौकरी है, और नौकरी है इसीलिए गरीब नहीं है.
But wahi, if I'm talking about the other side of the coin, the things are really dark. People are like they are not able to fulfill their daily requirement. They are not able, for that forced है उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स काम करने के लिए, ब्रेड अर्न करने के लिए सबके सब लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जनरेशन तक ये प्रॉब्लम एक्सटेंड हो रही है. बिकॉज इफ वन जनरेशन is illiterate, obviously that will be having a perpetual effect on the various generations. And this is only because of because of inequality, which is because of no proper mode of distribution of income, and no inequality in distribution of income and wealth. So like rich are becoming richer, poor are becoming poorer. Okay, next factors which have contributed towards what are the causes of poverty are regional disparities. Regional disparities का मतलब सीधा सा है कि आपको you will find regional imbalances. कि people residing in northeast, lack of opportunities, गरीबी है. People in Madhya Pradesh, people in Chhattisgarh, people in Orissa, this is a portion जहाँ पे again job opportunities की बहुत कमी है. जो land है, जो graphical conditions है, वो favorable नहीं है. तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है और पॉपुलेशन के साथ साथ पैरेलली उनके लिए इक्वलेंट सोर्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली वो पुअर है. और लिटरेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन है. सो दिस इज़ अगैन the causes of poverty. Next cause of poverty is the excessive population pressure on agriculture. अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है. एग्रीगेरियन का मतलब वी आर टोटली डिपेंड, ऑल्दो देयर आर वेरियस सेक्टर्स विच डू एग्जिस्ट, बट वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. और एग्रीकल्चर के साथ प्रॉब्लम जो हमने आपको बताई थी, डिस्गाइज पीपल, इंटायर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द सोर्स ऑफ लिविंग. सो अगैन जहाँ पे अगर लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी के टर्म्स पे बात करें तो देयर इज लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी. Actually only 2 people are required, but 4 people are forced to work on that land. So gradually there is over pressure, over exploitation of resources on agriculture. So gradually this is a reason which again lead to the problem of poverty. So these were the students, these were the various factors. Now again थोड़े secondary factors भी हैं. I have already discussed around 9 to 10 factors, but again अगर आपसे बात की जाए तो आपके एक और फैक्टर है लैक ऑफ कैपिटल, जो मैंने आपको अपनी लाइव क्लास में भी बताया था कि इसीलिए हम FDIs और FIIs को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ मोड जिससे हमें बाहर की कैपिटल अर्न कर, बाहर की पार्टीज हैं जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं. इन्वेस्ट कर रही, इसका मतलब दे आर ब्रिंगिंग कैपिटल, दे आर बेयरिंग द रिस्क, बट दे आर डूइंग बिजनेस ऑन आर लैंड. तो ग्रेजुअली अगर वो हमारी ग्राउंड लैंड पे बिजनेस करेंगी तो दे विल क्रिएट रिसोर्सेज, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो शायद विल बी एबल टू फाइट विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. तो इसलिए अगर कॉजेज में बात करें तो एक और सेकेंडरी फैक्टर है जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कैपिटल. कैपिटल का कमी है, कैपिटल की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ग्रेजुअली जो हमें पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स के साथ लाके खड़ा कर दे रही है. तो these were the causes. Students, today we have just taken up about the topic of poverty along with the causes which are responsible for promoting poverty. In my coming video, I'll be talking about the types of poverty and the various plans which have been imposed time to time for eradication of poverty in India. So students, just go through it. I'll be sharing the entire content on unemployment and poverty once I am done with my topic. So please just give a reading of the content which I've already shared you in this video. Just go through it and we'll take up various eradication and elevation program in the coming class. Thank you students. Thank you for watching. Waiting for your queries and questions.